about the stomach. For the stomach, we have already discussed about the 9 regions of the abdomen, and then in where the stomach is located, the inferior, superior to the stomach, the left, right of them, and the interior and the posterior part. For that, you can watch the shot, and after that, we are going to continue the topic, that is the stomach's anatomy. So here we say that this is the esophagus, and here it is a cardiac sphincter. We have already discussed about all this, and then it is a stomach, and then here is a pyloric sphincter, and after that the duodenum, the part of the small intestine starts, and then the small intestine and all that. So now from this we have discussed about that between the esophagus and the stomach there is a cardiac sphincter, and between stomach and further the duodenum is a pyloric sphincter. And here there are two curvatures, the greater curvature and lesser curvature. So as the name suggests, greater curvature is the large one, whereas the lesser curvature is a short and small. So like this is the posterior this is the esophagus, and from the posterior part of the esophagus in continuation there is a curvature going on, that is the lesser curvature, and it's moving like this, and at before the pyloric sphincter, that is this, it turns upwards to complete the J shape of the stomach, that is the J shape of the stomach. So to complete this J shape it moves upwards, and after that whereas this greater curvature, in the greater curvature it extends from on the interior part like this, from the cardiac sphincter it goes like on the interior part like this, going downwards, and then moves upwards to move upwards like this. So it is a greater curvature, all this part like this, it's from there to there is it all is the greater curvature, and here this to this is a lesser curvature. Okay, and this part is the fundus, and whole this is region is that is the body of the stomach. Okay, and here are some like we can make like line like this. So here is the pyloric sphincter, and here this portion is also known as pylorus. Okay, pylorus. What pylorus? From that is why the sphincter is named as pyloric sphincter, because here is a region that is known as pylorus, and fundus is, we can make line this, like this is the fundus, the whole thing. Okay, and now there are like some rugae, we can say rugae, like this in the stomach also. As you can see, let's see diagram of it. You can see from the diagram, here is the fundus, the lesser curvature extending from the posterior surface of the esophagus in its continuation, and then moving upwards before the pyloric sphincter to complete the J shape of the stomach. And here is the body of the stomach and the rugae, and the greater curvature is this, from the anterior part coming downwards and then going upwards. This is the pylorus, this is the duodenum continuing of this, and before that, as we have read about the stomach and duodenum, between it is a pyloric sphincter, and cardiac sphincter was between the esophagus and the stomach. Okay, and now as we have discussed about that 9 regions, that the stomach lies between the umbilical region and the left hypochondriac region and the epigastric region, like this we can say. So it was making a J shape like this. So in the we can say that the superior portion was the diaphragm, esophagus, and the left lobe of the liver. So we can remember it by a diagram like this. Okay, this is the esophagus, this is the left lobe of liver, and this is the diaphragm. And also liver is somewhat like this, we can say. So that's why on the right side, as in not left is right and right is left, so this is the right side. So on the right side is also there, duodenum is also there, as seen in the diagram like this. This is the duodenum on the right side of the stomach, and also the liver is also on the right side, although the left lobe of the liver is considered in the superior portion here, but in the right side also some part of liver is there. Okay, and in the posterior of the stomach, we have already discussed it in short, but for the just for a review, in the posterior part there are pancreas, spleen, and also the now it's posterior part, so there will be kidneys. So left kidney is there, and for that the adrenal gland is also there, and the abdominal aorta is also there. Okay, and whereas in the anterior portion, what is there? Anterior wall of the stomach, and of the abdomen, anterior wall of the abdomen, because stomach lies in the abdomen, and on the interior part, yani dorsal part, front part में anterior wall of the abdomen होगा, and anterior wall of the abdomen is there, and along with that there is also the left lobe of the liver, that is LLL, that is left lobe of liver, is also there. Also in the superior also there was liver, and in the right side also it was there, and now in the interior portion it is also present. So it is present in the 3 things. Okay, and now inferior to the stomach, अगर ये stomach है हमारी, तो इसके inferior of course duodenum start हो रहा है, यानी small intestine start हो जाएगा, उसके बाद so small intestine and transverse colon, these 2 things are there in the inferior of the stomach. Okay, whereas on the left side now अब हमारा anterior हो गया, posterior हो गया, हमारा left side हो गया,
So now on the right side of the stomach, what will be there? What will be the present there? क्योंकि superior हो गया, inferior हो गया, all that is done. So on the right side there is right side we have already discussed, that is the liver and the duodenum. Left side रहता था. So left side there will be diaphragm and spleen. Spleen posterior में भी आया था, वो हमारे posterior में भी आया था, and also in the left region, that is the spleen, and also the along with spleen it is also considering on the left side is that the what is this, the spleen and the diaphragm, because we have made that diagram like of the esophagus, diaphragm and the left lobe of liver. So in the left side this is the diaphragm is also somewhat there present. So becoming from the next topic, going to the next topic, let's discuss about the further more. That is, you can see in this diagram that about the regions of the stomach, like this is the stomach, and so हमने पढ़ा था कि उसके superior में क्या क्या present है. Esophagus is there, left lobe of the liver is there, and also we have read about remember that diagram that was like this and this. So also the diaphragm is there on the superior part, whereas inferior to the stomach is the duodenum. See this, and also the transverse colon will be there here. Okay, and on the posterior part we have read about the left kidney will be there, and the adrenal gland will be there, spleen will be there on the, see, you can see in the image it is drawn like this only, that is in the posterior portion. And also there behind the stomach there will be abdominal aorta. So you can see this is the abdominal aorta, behind that is the superior to the stomach. And we can see here that on the we can say that on the anterior part it is the left lobe of the liver, and also the what we have read about, that is the discuss about the anterior wall of the abdomen and the left lobe of the liver. And now to the left and right sides, that is a major point. So on the left side there is the diaphragm and the spleen, as you can see in this diagram. Okay, this is the spleen on the left side, and also it was present posteriorly, and also the diaphragm somewhat about like, see this. Okay, this portion. Okay, and then to the right side of it is the, as we can say, see this, all the liver on the right side, and also the duodenum on the right side somewhat. Okay, so taking further, stomach is divided into three regions, as we have seen. The upper was the fundus, then it was the body, then नीचे क्या था, pylorus. These three regions, in these three regions the stomach is divided. Now here on the distal part of pylorus, यानी pylorus से थोड़ी दूरी पे है हमारा pyloric sphincter, which is relaxed when there is no food inside the stomach. यानी जब when the pyloric sphincter is relaxed and open, the stomach is inactive. And also, but when the food is there in the stomach, then the pyloric sphincter gets closed. Okay, so now moving on further now to the walls of the stomach, we will discuss about of the stomach. We have as basic layers that are muscle layers. So हमने पहले पढ़ा कि हमेशा यही पढ़ते आए हैं अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम में कि 2 layers होती हैं हमारे मस्कुलर लेयर में. बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अंदर वाली इनर लेयर्स आर द सर्कुलर इन नेचर. वेयर एज स्टमक में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि है हमारे मस्कुलर लेयर में इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं हमारे, वो सब में 2 होते हैं, इनमें 3 होते हैं. एक आउटर लेयर, इनर लेयर तो होती है, एक मिडल लेयर एक्स्ट्रा होती है इसमें. ठीक है, तो वो तो सेम ही रहेगी. आउटर लेयर तो लॉन्गिट्यूडनल ही होती है, सेम रहेगी. एंड इनर लेयर हमारे सर्कुलर होती थी, पर अब उसकी जगह मिडल लेयर सर्कुलर है. एक सिर्फ इनर, ये मतलब आप समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा ये है जो कि है ऑब्लीक लेयर. तो पहले इनर थी स्मॉल सब में, इसमें क्योंकि एक और लेयर पीछे से ऐड हो गई तो सर्कुलर मिडल बन गई, और इनर में आ गई हमारे ऑब्लीक लेयर. ठीक है, तो 3 पहले 2 होती थी, मतलब होती हैं बाकी डाइजेस्टिव उसमें, लेकिन स्टमक के केस में ये 3 हैं. मिडल लेयर एक एक्स्ट्रा लेयर है. ओके, सो नाउ इन ऑब्लीक लेयर इट इज़ ड्यू टू, क्या क्यों हमें चाहिए थी ऑब्लीक लेयर यहाँ पे, बिकॉज ऑफ फॉर द चर्निंग मोशन एंड फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ताकि पेरिस्टाल्सिस हो सके एंड चर्निंग प्रॉपरली हो सके. तो इन 2 रीजन की वजह से ऑब्लीक लेयर ऐड की जाती है. स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ लाइक दिस. सो इट इज़ द ऑब्लीक फाइबर्स, दैट इज द इनर लेयर, सर्कुलर फाइबर्स मिडल लेयर, एंड आउटर फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनल. ओके, सो एज यू कैन नाउ हेयर सी ऑब्लीक लेयर्स, ये वाले बॉक्सेस, एंड इनके आसपास मिडल लेयर है सर्कुलर की, एंड बाहर लास्ट में है हमारे आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स. ओके, पढ़ ली थी पहली लेयर मस्कुलर, दैट इज द मसल लेयर, जिसके अंदर 3 थी, ऑब्लीक, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर. ऑब्लीक इनर मोस्ट एंड बाहर थी लॉन्गिट्यूडनल, सेंटर में सर्कुलर. तो सेकंड लेयर आ जाती है अब हमारी म्यूकस लेयर, म्यूकोजा. ओके, तो म्यूकोजा के अंदर क्या है, मस्कुलर
मस्कुलर कैरियम म्यूकोजा है हमारी, जो वो स्टमक जब एम्प्टी होती है तब उसके अंदर द म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जो हमारी लाइनिंग जो वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाती है, लाइक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स लाइक दिस, ओके। एंड इसी को ही हम रगेज कह रहे थे, जो हमने पहले डायग्राम में देखा भी था। फिर उसके बाद जब लेकिन स्टमक में फूड आ जाता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो जाते हैं, आयरन आउट हो जाते हैं, गिविंग द सर्फेस अ वेरी स्मूथ एंड वेलवेटी टेक्सचर, ओके, वेलवेटी एंड स्मूथ टेक्सचर दे देते हैं। और अब इसके नीचे अंडर द सर्फेस ऑफ दिस देयर आर सिचुएटेड मैनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइक दिस, एंड वो क्या स्क्रीट करेंगे, अब स्टमक के अंदर है गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो गैस्ट्रिक जूस ही स्क्रीट करेंगे इनटू द हमारे स्टमक में। अब ब्लड सप्लाई पे आ जाएं तो ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कौन प्रोवाइड करता है, एक तो लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये तो आपको याद हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। दो और हैं जो कि है हमारे, इसकी स्पेलिंग अब ध्यान से देखना, एक तो है हमारा गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रो ऐसे याद रख लो, गैस्ट्रो फिर गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, एंड द वन मोर इज द, कौन सी रहेगी बताओ, वन मोर इज द, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, नेक्स्ट इज द COELIAC, कोलेइक आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड कोलेइक आर्टरी, ओके। तो ये चार होती हैं। एंड वेन्स जो ड्रेन करेंगी उनके नेम्स सेम एज लाइक दिस, एंड यही नेम्स वेन्स के, एंड दे ड्रेन इनटू द, कौन सी वेन में वो ड्रेन करते हैं आगे, हमारी पोर्टल वेन में, ठीक है, वो पोर्टल वेन में ड्रेन आउट करते हैं, ओके। अब हम करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस और उसके फंक्शंस हमारे स्टमक के, ठीक है। तो हम फिजियोलॉजी पार्ट पे जा रहे हैं। सो अब क्या है, अबाउट द 2 लीटर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड डेली, कौन सिक्रीट करता था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे थे वो, अंडर द सर्फेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन वाली लेयर में। तो अब 2 लीटर होता है, अब 2 लीटर में होता क्या क्या है हमारा, मिनरल सॉल्ट्स, H2O यानी कि वाटर होता है, HCl होता है, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, और अनएक्टिव जैसे कि पेप्सिनोजन होता है। अब जो हम इसको डिटेल में देखते हैं, ये तो मिनरल सॉल्ट्स और H2O तो है ही, उसके बाद जो पेराइटल सेल्स होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं हमारे HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। उसके बाद एक इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन हमारे पास, ये इसको एक्टिवेट करते हैं हमारे, पहले तो ये सिक्रीट कौन करता है, ये सिक्रीट करते हैं चीफ सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजन विच इज़ फर्दर एक्टिवेटेड, वो हम आगे देखेंगे कौन किसको एक्टिवेट करता है और क्या क्या प्रेजेंट होता है। अभी के लिए आपको ये देखो, मिनरल सॉल्ट्स, H2O, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स एंड पेराइटल सेल सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl, ओके। तो अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंक्शंस, ओके, किसके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जो प्रेजेंट थे अंडर द सर्फेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पहला हमने पढ़ा था HCl सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता था इन्हें, पेराइटल सेल्स, है ना। तो HCl क्या करेगा, अब एसिड है तो एसिडिफाई करेगा किसको, जो वहाँ पे स्टमक में फूड होगा, एसिडिफाइज द फूड एंड स्टॉप द एक्शन। तो अब जब फूड एसिडिफाई हो गया तो सलाइवरी अमाइलेज स्टॉप कर हो जाएगा, तो ये एसिडिफाई करता है फूड को एंड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, और जो माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं उन्हें किल कर देता है, ओके, किल्स द इंजेस्टेड माइक्रोब्स, प्रोवाइड्स द एसिडिक इन्वायरमेंट। अब ये एसिड है तो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा पेप्सिनोजन, एक्टिव हो जाएगा। पेप्सिनोजन सिक्रीटेड कौन करता था, सिक्रीट उसे चीफ सेल्स पेप्सिनोजन सिक्रीट करते थे ना, वो पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय HCl इंटू पेप्सिन, तो उसे एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। पेप्सिनोजन जो चीफ सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, और इसे ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, इसे एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो कि हमारा HCl प्रोवाइड करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है पेप्सिन, जो ऑलरेडी स्टमक में जो पहले से प्रेजेंट होंगे वो भी इसे पेप्सिन बनाने में, मतलब जो नया वाला पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन करना है उसमें हेल्प करते हैं। पेप्सिनोजन को एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है HCl और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेप्सिन, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, राइटिंग समझ लेना, इनटू पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन कन्वर्ट करने के लिए चाहिए HCl और एग्जिस्टिंग पेप्सिन्स एसिडिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो है पेप्सिन, ये किसकी डाइजेशन करवाता है, हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करवाता है, ठीक है। वो क्या कर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन के, ठीक है। एंड पेप्सिन हैव इवॉल्व्ड टू एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली एट अ वेरी लो pH, ये बहुत लो pH में काम करता है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट से एक्टिवेट होता है, तो ये
1.5 से 3.5 pH के बीच में वर्क करता है। pH 1.5 से 3.5, ओके। ये मोस्ट इफेक्टिवली इस pH में, इतनी लो pH में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा हमने और क्या पढ़ा था, पैराइटल सेल्स और क्या सिक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो कि खुद हैं एक प्रोटीन। ये किसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, B12 की, एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 कहाँ से, फ्रॉम द इलियम। इलियम इज अ ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से B12 की एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अगर ये मतलब ना हो इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स it causes anemia. Which anemia? Pernicious anemia. That is the due to deficiency of intrinsic factors. Okay, pernicious anemia. म्यूकस जो हमारा होता है, म्यूकस क्या करता है, हमें दो चीज़ों से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम द केमिकल इंजरी। अब मैकेनिकल इंजरी से कैसे बचाता है, क्योंकि जो फूड स्टमक के अंदर है उसे ये ल्यूब्रिकेट कर देता है, तो ये स्टमक की वॉल्स को बचा देता है रफ होने से, उनके मैकेनिकल इंजरी होने से। और केमिकल इंजरी से कैसे बचाता है, क्योंकि ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, स्टमक की वॉल और गैस्ट्रिक एसिड्स के बीच में, कोरोसिव गैस्ट्रिक एसिड्स के बीच में। क्योंकि जो ये गैस्ट्रिक एसिड अब कौन से हैं जिनसे ये बचा रहा है स्टमक की वॉल को, नहीं तो स्टमक की वॉल ही खराब हो जाती गैस्ट्रिक एसिड से, क्योंकि इतनी तेज़ कंसंट्रेशन, इतनी लो pH के। तो कौन से गैस्ट्रिक एसिड हैं, एक तो है हमारा HCl, उससे बचा रहा है ये हमारे डैमेज होने को स्टमक वॉल से, और एक पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन क्या करता है, ये भी 1.5 से 3.5 pH में वर्क कर रहा था ना, हमने पढ़ा था, तो ये भी गैस्ट्रिक टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा ना हो सके और HCl से भी खराब ना हो सके स्टमक वॉल, तो इसलिए हमारा जो म्यूकस है वो म्यूकस हमें बचाता है और लुब्रिकेट करके फूड को मैकेनिकल इंजरी से भी हमें बचाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जो फेजेस पढ़ेंगे, 3 फेजेस होते हैं, वो हम देखते हैं। फेज कौन सा होता है ये फेजेस में, पहले तो ये देखो कि फेजेस से पहले कि जो हमारा जब हमारे कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होता स्टमक में, तो हमारे पास सिर्फ फास्टिंग जूस होता है, बहुत कम जूस होता है, ठीक है। और अबाउट मतलब मील खाने के, हमारे जो मील खाने के 1 आवर बाद मैक्सिमम होता है, मतलब उस टाइम पे हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं। एंड अबाउट आफ्टर 4 आवर्स ये सिर्फ फास्टिंग जूस रह जाता है, ओके। उसके बाद देखते हैं कि ये फेजेस जो हम करने लगे थे। तो पहला फेज़ है हमारा, दैट इज़ द सिफेलिक फेज़, ठीक है। अब सिफेलिक फेज़ में क्या होता है, दिस इज़ द फेज़ जब अभी फूड स्टमक में गया ही नहीं है, फूड स्टमक में जाने से पहले का फेज़। जैसे कि ये होता है स्टिमुलेट बाय पैरासिम्पैथेटिक, ओके। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से स्टिमुलेट होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, किसकी, ऑफ द रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन बाय द वेगस नर्व हमारी जो होती है उसकी वजह से ये स्टिमुलेशन होती है। एंड दिस इज अ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से है। एंड दिस लीड्स टू एंड इट कैन बी ड्यू टू द साइट ऑफ द फूड, विजन ऑफ द फूड के बारे में आप थिंक कर रहे हो, एट्सेट्रा। इन चीज़ों की वजह से जब हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट हो जाता है, तो दैट इज़ द कंसिडर्ड इनसाइड द सिफेलिक फेस। एंड इसमें आप अगर जब, क्योंकि ये नर्व किस नर्व से जा रहा है मैसेज, वेगस नर्व से, तो जब वेगस नर्व की नहीं होती, यानी कट कर देते हैं सर्जरी वगैरह कुछ भी, तो जिसे हम कहते हैं वेगोटॉमी। टॉमी मीन्स टू कट एंड वेगो मीन्स फॉर द वेगस नर्व, इट इज़ यूज्ड। वेगोटॉमी होती है जब, तब ये सिफेलिक फेस नहीं स्टिमुलेट हो पाता। एंड ऑल्सो जब हमारे पास देखो ANS में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। तो जब ये किसकी वजह से हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से, लेकिन अगर सिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि जैसे कि किसी भी इमोशनल स्टेट वगैरह में, जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तब हम कहते हैं कि भूख नहीं लगती, तो तब क्योंकि हमारा सिफेलिक फेज़ है वो स्टिमुलेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन चल रही होती है रादर देन पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ हमारा, अब सेकेंड फेज़ आ जाता है, दैट इज़ द गैस्ट्रिक फेज़। ये हमारा सेकेंड फेज़ है। इसमें अब गैस्ट्रिक फेज़ है तो क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होंगे। अब जो हमने पढ़े थे पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, तो एक और सेल होते हैं G सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करवाते हैं, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज़ अ हार्मोन दैट फर्दर लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द अदर सेल्स, मतलब ताकि आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो हमारा HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह वगैरह जो हमने पढ़े थे वो सिक्रीट करवा पाएँ बाकी सेल्स, पैराइटल चीज। तो उन्हें स्टिमुलेट कौन करता है, हमारा गैस्ट्रिन, जो कि सिक्रीट होता है किससे, G सेल से, ठीक है। तो अब जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन जो हमारा है, गैस्ट्रिक फेज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फूड जब एंटर कर गया अब स्टमक में, तो उसकी वजह से हमारा स्टिमुलेट हो जाता है गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज आगे क्या करता है, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फूड, जो एक ना हमारे पाइलोरस हमने पढ़ा था ना स्टमक का पार्ट, उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे NENTERO
एंडोक्राइन सेल्स, इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ये कहाँ होते हैं हमारे पाइलोरस में एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे पाइलोरस में होते हैं। एंड एक हमारे डुओडेनम में होता है, जो हमने अभी पढ़ा था, सिक्रीट करता है हार्मोन गैस्ट्रिन के बारे में अभी हम देख रहे थे ना, जी सेल्स वगैरह से सिक्रीट होते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन, जो सिक्रीट पहले डुओडेनम सिक्रीट करता है हमारे गैस्ट्रिन को, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिन होता है और जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, अब इनकी वजह से हम गैस्ट्रिक फेज को देखते हैं। तो जो हमारा गैस्ट्रिन होता है वो कैसे करता है, डायरेक्टली पास कर जाता है गैस्ट्रिन, जैसे डुओडेनम ने गैस्ट्रिन सिक्रीट कर दिया, अब जो गैस्ट्रिन है वो सीधा ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, एंड जो गैस्ट्रिन है वो सप्लाई करता है स्टमक को भी फिर, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो गया था, तो वो स्टिमुलेट करता है, हमने जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, वो स्टिमुलेट कर देता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, ताकि वो मोर और मोर ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस कर पाएंगे। गैस्ट्रिक जूसेस हमने देखे हैं पीछे, जो हमने पहले पढ़े थे फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हो पाएँ। इन दिस वे जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक जूसेस की वो कंटिन्यू होती रहती है एंड मील के कंप्लीशन के बाद, एंड सेफेलिक फेज जो है हमारा वो एंड हो गया होता है इस टाइम तक, एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन जैसे कि अब गैस्ट्रिन की वजह से होगी और गैस्ट्रिन के बाद आगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स एक्सेल वो सब रिलीज होता रहेगा एंड डाइजेशन होती रहेगी। तो ये एंड कब होता है गैस्ट्रिन का रिलीज होना, जब पाइलोरस जो है हमारा, क्योंकि पाइलोरस में हमारे एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी थे ना, तो वो भी तो स्टिमुलेट कर रहे थे फूड की डाइजेशन में, तो और डुओडेनम से गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा था। तो जब पीएच पाइलोरस का व्हेन पीएच फॉल हो जाता है हमारा 1.5 तक, तब वो स्टॉप कर देता है गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को, क्योंकि एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी मतलब तब नहीं चल रहे होते, ठीक है। तो यानी सब कुछ स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा एसिड भी तो नहीं रिलीज़ करवा सकते ना स्टमक में, तो अब स्टॉप करने के लिए वो पाइलोरस को पीएच जब 1.5 मिल जाता है तब वो स्टॉप कर देता है सब कुछ। तो थर्ड फेज आता है हमारा इंटेस्टाइनल फेज। अब इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, जब हमारा अब यहाँ तक आने तक फूड पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है एंड द कंटेंट ऑन द जो स्टमक के कंटेंट्स है वो आगे किस में जाएंगे, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो चले गए तो वहाँ पे दो हार्मोन्स होते हैं, सिक्रीटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन, जिसे हम क्या सिक्रीटिन एंड कॉलिसिस्टोकाइनिन CCK एंड S, ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, एंडोक्राइन सेल्स। किसके, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द इन द मतलब किसके नहीं, कहाँ पे, इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइन के म्यूकोजा के अंदर जो हमारे एंडोक्राइन सेल्स हैं वो दो हार्मोन रिलीज करते हैं, सेक्रीटिन एंड CCK दैट इज कॉलिसिस्टोकाइनिन, एंड ये क्या करते हैं, ये स्लो डाउन कर देते हैं किसको, इन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को, एंड रिड्यूस कर देते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब वो ये कैसे करते हैं, बाय क्योंकि स्लो कर देते हैं किसको, एम्प्टिंग रेट ऑफ स्टमक को। द काइम इन द डुओडेनम बिकम्स मोर थॉरोली मिक्स्ड विद द बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। अब जो क्या है, इन्होंने क्योंकि स्लो डाउन कर दिया मोटिलिटी को, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, क्योंकि इन्होंने रेट ही स्लो कर दिया स्टमक के खाली होने का, तो अब जो काइम है वो स्लोली एंड स्टेडली मिक्स हो जाता है इन द डुओडेनम। कहाँ किससे मिक्स हो जाता है, विद द बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस से, ठीक है। दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज मोस्ट मार्क्ड फॉलोइंग अ मील विद अ हाई फैट कंटेंट। जब हमारी मील में फैट का कंटेंट हाई होगा तब इंटेस्टाइनल फेज हमारा है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, एंड द रेट एट विच द स्टमक एम्प्टीज डिपेंड्स लार्जली ऑन द टाइप ऑफ फूड इटन। हमारे फूड पे डिपेंड, ये तुम्हें पता ही कि हमारे फूड पे डिपेंड करता है कि हमारी जो स्टमक एम्प्टी है वो कितनी जल्दी होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स वगैरह और जितना ज़्यादा होगा वो उतनी लेट एम्प्टी होगा, और जैसा फूड का टाइप होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट मील होती है वो लीव करती है स्टमक को 2 to 3 आवर्स, जो प्रोटीन मील है वो रिमेन करती है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, 2 to 3 आवर्स से भी ज़्यादा, एंड जो फैटी मील है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। यानी अगर आपकी मील में फैट ज़्यादा होगा तो वो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा स्टमक एम्प्टी करने के लिए। सेकंड नंबर पे कौन आता है, प्रोटीन, एंड कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा सिर्फ 2 to 3 मतलब सबसे कम घंटों में डाइजेस्ट हो जाते हैं कार्ब्स, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन उससे लेट, फैट सबसे लेट। तो अगर आपकी मील में फैट है तो वो रेट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक को, मैं आपको लिख के बताती हूँ, अगर आपकी मील में फ़ैट है तो वो ज़्यादा है आपकी मील में फ़ैट, तो वो रेट को कम कर देगा, कौन से रेट को, ऑफ एम्प्टिंग ऑफ स्टमक के रेट को कम कर देगा, ठीक है। तो अब अगर फैट्स ज़्यादा हैं, रेट कम हो गया, यानी स्लोली वो आपके पेट से निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जो हमारा फेज़ है वो ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि उसे उतना ही टाइम लगेगा उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसे गैस्ट्रिक जूसेस को वो कम करके वो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल से मिक्स भी करवाना है बोलस को, तो फूड को, टाइम को, यानी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली काइम वर्ड यूज़ करेंगे, काइम को, उतना ही लंबा टाइम लगेगा, ठीक है।
discuss about the functions of the stomach. So first is the that it acts as a temporary storage. Temporary storage है क्योंकि टाइम दे देती है ताकि गैस्ट्रिक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर सकें, एक्ट कर सकें फूड पे, ताकि वो काइम वगैरह में कन्वर्ट हो सके. तो मतलब ये एक टाइम दे देती है, चीज़ों को टेम्परेरीली स्टोर कर लेती है फूड को. और ये केमिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करती है प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, या हम कह देते हैं और ये किससे होता है? प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करके मतलब कन्वर्ट करता है? पॉलीपेप्टाइड्स में, जो कि है हमारा पेप्सिन. तो उसके बाद जो है पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स. एंड देन इज द मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे करते हैं? चर्न करती है फूड को, मिक्स कर देती है, उन्हें गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स करवाती है. कंटेंट हमारा जो है लिक्विडिफाइड कर देते हैं, क्योंकि अब गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो गया फूड तो लिक्विडिफाइड तो होगा, उसे हम कह देते हैं काइम. और ये साथ ही साथ जो हमारा है सेक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देती है, गैस्ट्रिक जूसेस को इंक्रीज़ कर देती है. पॉलीसिम्पैथेटिक, क्योंकि पॉलीसिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है वेगस नर्व के थ्रू, हमने पहले जैसे पीछे बढ़ा, तो सेक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं और इसलिए ये ऐसे भी एक्ट करता है. और ये इसलिए साथ ही साथ यानी इंक्रीज़ करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, गैस्ट्रिक मोटिलिटी सेक्रीशन ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन. अब आगे और इसके फंक्शंस है कुछ जो हम देखते हैं. स्टमक ये ना एब्जॉर्ब करवाता है थोड़ा सा हमारे वाटर को, अल्कोहल को, और जो हमारे लिपिड्स को नहीं, लेकिन लिपिड के जो हमारे होते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स. सो ये थोड़ा सा हमारा अब्जॉर्ब करवा देता है, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ये करवाता है, H2O को एंड अल्कोहल को. ओके. एंड ये एक और चीज़ करवाता है जो कि है हमारा लिक्विडिफाई कर देता है ये फूड को, एंड एसिडिफाई कर देता है, उसे काइम में कन्वर्ट कर देता है. फिर वो पाइलोरस से डुओडेनम में चले जाते हैं थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो पाइलोरिक स्फिंक्टर स्मॉल अमाउंट में फूड को एंटर करवाता है हमारे डुओडेनम में, एंड इसके जो हमारा है यानी ये पैसेज क्रिएट करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इनटू द डुओडेनम थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है. और बैकफ्लो को बचाने के लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड को थोड़ा सा, जैसे फूड ऐसे सेंड करवाया, उसके बाद क्लोज हो जाता है, फिर फूड जाता है, क्लोज हो जाता है, ऐसे. ओके. एंड ये प्रिपरेशन करवाता है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए. अब वो कैसे करवाता है ये, क्योंकि ये जो आयरन है, आयरन को सॉल्युबलाइज कर देता है, आयरन सॉल्ट को सॉल्युबलाइज करवा देता है. तो वो जब सॉल्युबलाइज होते हैं तो वो आगे जाके ये अब कैसे सॉल्युबलाइज हो जाते हैं? ये एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो आयरन सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं स्टमक के अंदर, जो कि जिनकी वजह से मतलब जब आयरन सॉल्ट सॉल्युबलाइज हो जाते हैं उसकी वजह से ही आयरन अब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाती है. किसमें? फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में. यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आयरन अब्जॉर्प्शन होती है वो क्यों हो पाती है? क्योंकि आयरन सॉल्ट सॉल्युबलाइज होते हैं. और ये क्यों होते हैं? क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है स्टमक का, उसकी वजह से होते हैं. ठीक है. तो और एक और बात है कि ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोब्स को एसिडिक एनवायरनमेंट किल कर देता है, एंड उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग वगैरह भी तो ही होती है जब गैस्ट्रिक इरिटेंट्स ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स, जिसकी वजह से वो बाहर निकलवा देता है उन्हें. तो ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी एक्ट करता है. और उसके बाद एक है हमारा कि ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो हमने पढ़ी वो सब भी, क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज़ करवाता है और वो सब. एंड रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द डुओडेनम, ये हमने पढ़ी लिया कि पैसेज क्रिएट करवा देता है ताकि जो काइम है वो सफिशिएंटली एसिडिफाई और लिक्विफाई होकर पाइलोरस से फोर्स डाउन होकर थोड़े थोड़े पार्ट्स में गैस्ट्रिक कंटेंट जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू डुओडेनम में चला जाए. ये हमने पढ़ लिया. तो ये थे फंक्शंस ऑफ स्टमक, एंड इसी के साथ हमारा स्टमक वाला टॉपिक फिनिश होता है.